Welcome back my dear friends and my students. In first lecture, we studied the introduction of our first chapter of civics, political studies, that is power sharing. Okay, I introduced you about what is power sharing. Okay, then after we studied about the two countries' ethical composition. Okay, so these are the two countries of Sri Lanka and Belgium. So can you say me what is the ethical composition of Belgium? What is the ethical composition of Sri Lanka? Okay, let I say you. Let me revise the first period somewhat. The ethical composition of Belgium. In Belgium, there are Dutch speakers who are in majority in the country, but they are in minority in the capital Brussels. Then after there are French speakers who are minority in the country, but they are majority in Brussels. Then after only 1% is German speaker. Okay. Then Sri Lanka. In Sri Lanka, the majority group was Sinhala speakers. Then after Tamil speaker again also divided into two categories: Sri Lankan Tamil and Indian Tamil. Okay. The people who are the native of Sri Lanka and they spoke Tamil language, they are called Sri Lankan Tamil. Then Indian Tamil in the sense that whose forefather came from India under the colonial government and they reside in the Sri Lanka, they were known as Indian Tamil. Okay, so we have studied the both countries' ethical composition. Now let me see about that what did after this ethical composition, because almost all the countries of the world, they have not same type of composition. They have not one community type of people are living in their country. They have different people. And as we know that democracy deals with a different type of people. And different type of people, they have different demands, they have different needs, they have different expectations from the government. Okay. So let me see that how Sri Lankan government deal with the different type of composition, different type of population. So first of all, let me see what did Sri Lanka. Sri Lanka took majoritarian steps. Okay. First of all, let me understand that what is meant by majoritarianism. Majoritarianism in the Sri Lanka. Okay. So for that, let us understand the word majoritarian. Majoritarian in the sense that where a majority community of a country establishes its dominance over the minority, like their demand, their wish, their need, they suppress the need of minority people. So same way, Sri Lankan people started the majoritarianism in Sri Lanka. How they started? So first of all, Sri Lanka became the independent in 1948. As you know that our country was also under the colonial government, Britishers. So same way Sri Lanka was under the colonial government. But Sri Lanka became independent in 1948. So after becoming independent, Sri Lankan government has to make a government for the country. And Sri Lanka made democratic government. And the democratic government, one party was elected. And that party had maximum number of members belong to the Sinhala speaking community. And this Sinhala speaking community, they wanted to establish their majority over the Sri Lanka because they believe, वो ऐसा मानते थे कि हम लोग यहाँ पे ज्यादातर सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो श्रीलंका के अंदर हमारा ही चलना चाहिए क्योंकि हम लोगों की तादाद यहाँ पे ज्यादा है. And that's why they took some majoritarian steps. और जो majoritarian steps तो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी ने, इन द सेंस दैट जो सिन्हाला के लीडर्स ने जो स्टेप्स लिए थे, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए, इवन सिविल वॉर वहां पे क्रिएट हो गए थे. तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं व्हाट आर द मैजोरिटेरियन स्टेप्स टेकन बाय द श्रीलंका. दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. इट वाज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीलंका मेड सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो पहला तो काम श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी से जो मेजॉरिटी में थे, उसने पहला काम तो ये किया कि जो उन लोगों की लैंग्वेज थी सिन्हाला, उसको बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज. रिगार्डिंग द अदर लैंग्वेजेस, दूसरी कोई लैंग्वेजेस को उसने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया, सिर्फ बनाया किसको, तो के सिन्हाला लैंग्वेज को. क्योंकि सिन्हाला स्पीकर जो ज्यादातर थे, उन्हीं लोगों की वजह से तो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. उसके बाद उन लोगों ने
प्रेफरेंशियल पॉलिसी, प्रेफरेंशियल पॉलिसी, प्रेफरेंशियल पॉलिसी इन द सेंस दैट उन लोगों ने कुछ प्रेफरेंस दिया, कुछ प्रेफरेंस कि भाई ये कम्युनिटी का पहले चांस आना चाहिए, वो कम्युनिटी का पहले चांस आना चाहिए, ऐसे उसने कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसी उसने कुछ बनाई, जिसके अंदर उन लोगों ने जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उन लोगों को उसको यूनिवर्सिटी पोजीशन में और गवर्नमेंट जॉब में उसको स्पेशल वेकेज मिलने लगा, स्पेशल उन लोगों को रिजर्वेशन मिलने लगा, स्पेशल इन लोगों को पोस्ट मिलने लगी। ओके, देन आफ्टर they also made the new constitution stipulated shall protect and foster the Buddhism। और उन लोगों ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लो यही था कि वो लोग बुद्धिज्म को फोस्टर करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और बुद्धिज्म को वो प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो ये तीन मेन मेजोरिटेरियन स्टेप्स वर टेकन बाय द श्रीलंका। पहला उसने क्या किया था, तो कि पहला तो उन लोगों ने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। सेकंड उन लोगों ने क्या किया, तो कि उन लोगों ने प्रेफरेंशियल पॉलिसी लगाई, जिसकी वजह से जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उन लोगों को यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन है, उसको गवर्नमेंट जॉब है, वहां से उसको इजीली मिल जाए। और थर्ड उन लोगों ने कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जिसके अंदर वो लोग सिन्हाला स्पीकर जो थे, जो ज्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, उसको वो लोग प्रोटेक्ट कर पाए और उसको फोस्टर कर पाए, उसको आगे डेवलप कर पाए। अभी जैसे ही है जितने भी मेजर्स लिए गए दे आर ऑल इन फेवर ऑफ सिन्हाला। ओके, तो तमिल स्पीकर को तो ऑब्वियस वहां पे प्रॉब्लम आने वाली थी। ओके, सो हाउ तमिल स्पीकर डील विद, ओके, व्हाट वाज द रिजल्ट क्या, जैसे ही ये सभी पॉलिसी निकाली, सो तमिल स्पीकर दे स्टार्ट फीलिंग ऑफ अलाइनेशन। उसको ऐसा लगने लगा हम अलाइनेशन है, वी आर अलोन कम्युनिटी इन द श्रीलंका। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो हमारी नीड को, हमारी विश को के बारे में कुछ सोचे। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू फीलिंग अलाइनेशन। एंड वो ऐसा भी मानने लगे दैट हियर नो वन सेंसिटिव अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर लैंग्वेज, अबाउट देयर रिलीजन। यहाँ पे तमिल स्पीकर को ऐसा लगने लगा कि हमारी लैंग्वेज के लिए, हमारे कल्चर के लिए यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव नहीं है। They are all thinking only about the Sinhala speaking, and that's why ये कुछ चीजें जो तमिल स्पीकर थी उसके माइंड में घुस गई। अभी सिन्हाला स्पीकर उसके सामने आ गए, तमिल स्पीकर, सिन्हाला स्पीकर्स ने कुछ ऐसे कुछ लो बनाए जो तमिल स्पीकर को सप्रेस करने लगे। तो तमिल स्पीकर भी यहाँ पे चुप बैठने वाले नहीं थे। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया, काउंटर अटैक बाय द तमिल स्पीकर। तो तमिल स्पीकर ने फर्स्ट ऑफ ऑल दे लॉन्च पार्टीज इन द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज। उन लोगों ने पार्टियां बनाई, उन लोगों ने वहां पे स्ट्रगल्स की कि भाई उसकी तमिल लैंग्वेज को भी श्रीलंका के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिले, उसका भी इंपॉर्टेंस हो, नॉट ओनली सिन्हाला लैंग्वेज। ओके, सेकंड दे आल्सो आस्क अबाउट द रीजनल ऑटोनॉमी, तो उसको रीजनल हमने जैसे कि देखा था कि श्रीलंका के अंदर जहां पे तमिल स्पीकर्स रहते थे वो एरिया को कुछ रीजनल ऑटोनॉमी इन द सेंस कुछ रीजनल पावर दिए जाए। एंड दे आल्सो वांटेड कि उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को मिलती थी वो तमिल स्पीकर्स को भी मिलनी चाहिए। एंड दे आल्सो डिमांडेड फॉर तमिल इलम इन द सेंस दैट वो एक तमिल इलम, एक तमिल स्टेट की डिमांड श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास से करने लगे। तो ये कुछ काउंटर अटैक्स हैं, ओके, जो हम लोगों ने देख लिया कि जैसे ही सिन्हाला स्पीकर्स ने, सिन्हाला गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियन स्टेप्स लिए तो उसके अपोजिट में तमिल स्पीकर्स ने क्या किया, तमिल स्पीकर ने क्या किया, तो दे लॉन्च द पार्टीज स्ट्रगल्स रिकॉग्नाइजेशन तमिल लैंग्वेज। They also ask for the regional autonomy. They also ask for the equal opportunities. They also ask for the separate state, separate इलम, separate country. ओके, श्रीलंका के अंदर से। तो भी यहाँ पे बात तो इतनी दूर तक पहुंच गई कि तमिल स्पीकर थे वो श्रीलंका के डिवीजन तक आ गए थे। उसको अलग कर देना था कि भाई ये इतना तमिल स्पीकर का एरिया है, ये उतना सिन्हाला स्पीकर्स का एरिया है। बट ये डिमांड दिस डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सिन्हाला स्पीकर। तो जो श्रीलंकन तमिल ने जो यहाँ पे कुछ स्ट्रगल्स की थी, कुछ मूवमेंट की थी, इसका रिजल्ट क्या है, तो तमिल डिमांड वे रिस्पेक्टिवली डिनाइड। तो जो भी ये डिमांड की थी
जो भी डिमांड की थी तमिल स्पीकर ने, उसकी सभी डिमांड को यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दे डिनाइड, उन लोगों ने मना कर दिया, हम आपकी कोई भी डिमांड को फुलफिल करेंगे नहीं। ओके, एंड देन आफ्टर द मोस्ट वायलेंट फॉर्म of such type of conflict that was civil war, और यहाँ पे सिविल वॉर चालू हो गई। ओके, सिविल वॉर का मतलब ये होता है that is a violent conflict between the different opposite group of the country, कि जो कंट्री के अलग अलग अपोजिट ग्रुप होते हैं उसके बीच में जब कोई वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर। और श्रीलंका के अंदर जबरदस्त सिविल वॉर चालू हो गई, एंड जिसकी वजह से there are thousands of the people from both sides killed and some people become refugees, क्योंकि सिविल वॉर होगा तो लॉस किसी एक को नहीं होगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, लॉस किसी एक को नहीं हुआ। जो श्रीलंकन जो तमिल स्पीकर्स थे, जो सिन्हाला स्पीकर थे, दोनों को लॉस हुआ। दोनों कम्युनिटी के साइड में से सिविल वॉर की वजह से बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग बन गए रेफ्यूजीज। रेफ्यूजी इन द सेंस एक ऐसे लोग जिसको कंट्री में से निकाल दिया गया है एंड दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, currently they are not the citizen of any country. Okay, so in this way Sri Lanka tried to accommodate the diversity. Okay, श्रीलंका ने डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट किया? मैजोरिटेरियन स्टेप्स लेके, और मैजोरिटेरियन स्टेप्स लिए तो लास्ट में रिजल्ट क्या आया? तो सिविल वॉर हो गई और बहुत सारे लोग सिविल वॉर के अंदर मर गए। तो श्रीलंका का ये इतना इफेक्टिव मैजोरिटेरियन जो उसने स्टेप्स लिए थे वो श्रीलंका गवर्नमेंट के लिए अच्छा रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन है, कंट्री की इकोनॉमी है, कंट्री की हेल्थ है, इन सबको असर होगा। ओके, लेट मी सी कभी नेक्स्ट बेल्जियम ये एथिकल कंपोजिशन है उसको कैसे डील करेगा, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ये हमने स्टडी कर लिया यहाँ पे श्रीलंका का, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि बेल्जियम ऐसी सिचुएशन में कैसे वो हैंडल करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एथिकल कंपोजिशन। थैंक यू सो मच, आप वीडियो को इसी तरीके से देखते रहना और घर पे बैठे स्टडी करते रहना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।